آپ کا دیش شروع سے بتاتا رہا ہے کہ چاہے ریزولوشن میں یہ لکھا ہو کہ کشمیر سے ہمیں پہلے ہٹنا چاہیے، چاہے یہ ریزولوشن سے یہ لکھا ہو کہ انیشیل پروسیس آف اسٹیٹس ہیز ٹو بی اسٹیبلش، لیکن اس کو نہیں مانیں گے. لیکن آپ پولیٹیکلی ملیٹریلی ہمیشہ اس کے بارے میں ایک کاز بنایا ہوا آپ نے فرکشن کا. ہماری طرف سے کوئی کاز نہیں. ہمیں معلوم ہے کہ آکوپائڈ کشمیر ہمیں ملنا چاہیے، لیکن ہم لوگ اس قسم کے کوئی بیانات نہیں دیتے کہ ہم لوگ لڑ لیں گے، ہم پتہ نہیں کیا کر لیں گے. دوسری چیز، آپ نے یہ کہا کہ یہ جو صورتحال ہے یہ اس وجہ سے ہے بیکاز ادھر الیکشن ہونے والے. الیکشن ایک اسٹیٹ میں نہیں اجی حضور، الیکشن نے قبضہ کیا وہ تو نہیں بیان دے گا نا. ہر ایک جگہ ہم فرکشن کریٹ کر رہے ہیں. اور ایک ایل او سی ہے، اس کی جگہ تو سیز فائر ہم سمجھتے ہیں. ادھر تو آپ انٹرنیشنل بارڈر میں کر رہے ہیں. ایسی جگہ جہاں آرمی ڈپلائیڈ ہی نہیں ہے، ایسی جگہ جہاں صرف بی ایس ایف ڈپلائیڈ ہے، آپ وہاں فائرنگ کر رہے ہیں جہاں سیز فائر از آرڈنری چیز. ایک انٹرنیشنل بارڈر پہ آپ کو ایک ایسی چیز کر رہے ہیں جہاں سیز فائر از آٹومیٹک. اس کے لیے کوئی سر یہی تو ہم جاننا چاہتے ہیں. آر کے ملہوترا صاحب سوال دیکھیں، آپ سوال یہ ہمارا ہے. آر کے سر میری بات سن لیجیے، یہ سوال ہمارا ہے جناب کی طرف سے. اور یہ نا وائلیشن کی وجہ کیا ہے؟ بار بار وائلیشن پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہے. انڈیا صرف ریسپونڈ کر رہا ہے. انڈین گورنمنٹ کا یہی کہنا ہے کہ آپ کی فوج وائلیشن کر رہی ہے اور ہمارے پاس وجہ ہے. اگر ہم نے وائلیشن کی ہوتی، ہم یو این آبزرور گروپ کو نہ کہتے کہ وہ وہاں پر جائے اور جا کر دیکھے کہ فائرنگ کس نے کی ہے. ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو نہ کہتے کہ وہ وہاں پر جائیں اور وہاں جا کر دیکھیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. یہ دنیا ٹی وی اور نیوز 24 کی مشترکہ پیشکش ہے اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جو لائن آف کنٹرول کا معاملہ ہے اس پر بات ہو رہی ہے. میرے ساتھ انڈیا میں جو پینل موجود ہے اس میں انل کول بھی شامل ہیں اور میرا سوال ان کے لیے ہے کیونکہ وہ ریٹائرڈ فوجی ہیں. میں چاہتا ہوں تھوڑا ہم لائن آف کنٹرول کے حوالے سے بات کریں. وہی پرانی تقریریں سن کر شاید ہمارے ناظرین بھی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو فیکٹس ہیں ان پر بات کی جائے. انل کول صاحب، کانگریس کے دور میں فینسنگ ہو رہی تھی لائن آف کنٹرول کی، جو کہ اب مکمل ہو گئی ہے. اس لیے ایک پالیسی شفٹ دیکھا جا رہا ہے. جب تک فینسنگ تھی تب تک سیز فائر رکھا گیا اور امن کی بات کی گئی، مگر اب جبکہ فینسنگ مکمل ہو گئی ہے تو پھر وائلیشن شروع ہو گئی ہیں. بار بار وہاں سے شیلنگ کی جا رہی ہے. یہ پالیسی شفٹ کیوں آئی ہے؟ رحمان، پہلے تو میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ دے دوں. میں جنگ بہت قریب سے دیکھا ہے، ایک نہیں 3 بار، اور جتنی آپ کی عمر ہے اس میں قریب 3 بار ہی میں جنگ میں دیکھ چکا ہوں اس ٹائم فریم میں. لہذا میرے حساب سے جنگ یا لڑائی کوئی سلوشن نہیں ہوتا ہے کسی مدے کا. آپ نے جو مدعا اٹھایا ہے کہ پالیسی شفٹ، اگر آپ ذرا سا اپنا ریسرچ میں واپس جائیے، یہی اکتوبر کا مہینہ پچھلے سال یہی آپ کی سیز فائر وائلیشن، اتنی وائلیشن اسی علاقے میں، لیکن ہماری طرف سے جوابی حملہ نہیں ہوا. کانگریس کی گورنمنٹ کی پالیسی تھی. آج بی جے پی کی پالیسی ہے کہ جوابی حملہ ہوگا. اس لیے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ پالیسی شفٹ ہے. یس، پالیسی شفٹ ہے کیونکہ اس سمے ہماری پارلیمنٹ میں ایک مضبوط سرکار ہے بنا کسی کولیشن پالیٹکس کے، جن کو کوئی مجبوریاں نہیں ہیں. تو انہوں نے پالیسی بنائی ہے کہ اگر آپ اس چیز میں پہل کریں گے تو آپ کو سوٹیبل جواب، انٹینس، امیڈیٹ اینڈ سوٹیبل. سر پھر یہ بھی بتا دیجیے یہ انٹرنیشنل لاز کی، ہیومن رائٹس کی مجھے جواب دینے کا موقع دیں. دیکھیے صاحب، فینس لگائی کیوں گئی؟ میں جواب دینا چاہوں گا. رحمان ایک سیکنڈ، میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. رحمان ایک کرنا چاہ رہے ہیں. جی شاہد لطیف صاحب. رحمان ایک سیکنڈ، آپ مجھے بتائیے کر دیجیے کہ میرے بولتے ہوئے بیچ میں انٹرجیکٹ نہ کریں. ہم نے چپ کر کے سنا ہے. بولیے. اچھا آپ بولیے صاحب، بولیے. جی شاہد لطیف صاحب. ہم سے ہاں، 1 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان کی سائٹ پہ ایل او سی کے کراس ایک ان کا فوجی ہلاک ہو گیا. اس کے اوپر پوری دنیا میں اتنا شور شرابہ مچایا گیا اور ان کے آرمی چیف، ان کے ایئر چیف باقاعدہ ٹی وی پہ آئے اور انہوں نے پاکستان کو وارننگز دی، ایک جنگ کی دھمکیاں دینی شروع کر دی. یعنی ایک بندے کی ہلاکت اور جنگ کی دھمکیاں. پھر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے جنگ کی بات کی جاتی ہے. دوسرا یہ بتائیے، اس وقت ہم نے ایک تو کہا کہ ایویڈنس دیں،
फिर हमने कहा कि गैर जानिबदाराना एक सेकंड, एयर मार्शल शाहिद लतीफ, इंक्वायरी एयर मार्शल शाहिद लतीफ, हमारी मुश्तरका, एयर मार्शल लतीफ, मुझे एयर मार्शल लतीफ, आप बोलिएगा, आप मुझे जवाब बोलिएगा, आप बोलिएगा, आप मुझे जवाब बोलिएगा। हमने आपकी बात को मतलब ये चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के फौजी का सर कटे और हिंदुस्तान देखता रहे, चुपचाप बैठा रहे। आई विल हैव टू आपको जवाब भी ना दे। एवरी टाइम यू डू दिस टू मी। चले मानक, हमने आपको मुश्तरका नहीं चले जी नहीं, हमें जवाब मुझे देना होगा। आप नहीं, मेरा जवाब सुन के बात करें। ये क्या तमाशा बिहेव करती है कई बार, नहीं, ऐसे नहीं होगा। मेरा जवाब सुनना होगा। काट लेती है मेरा, क्योंकि सिर काट लेती है। आप चाहते हैं कि उसको चुपचाप देखा जाए। आप दरमियान में बोलते हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं, जाने दें, मानक, बिकॉज इट हिट्स आप यू। एक जर्नलिस्ट मेरे जवाब आपको हिट, मेरे जवाब आपको हिट कर रहे हैं। सवाल का वो जवाब, मेरा जवाब मुझे देने हो जाए, फिर फ्लोर आपके जवाब आराम से सुनेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमने मुश्तरका टीम की भी बात की, आपने वो ना माना। हमने कहा, आपने कहा जी हम ही इसकी इन्वेस्टिगेशन, हम इसका कोई एविडेंस नहीं देंगे। ये अब दुनिया को किसको बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं? इस तरह की बातें करने से आपके कद में इजाफा नहीं होता और फिर आप बहुत तराशी करते हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब वो हैं जो गुजरात में हजारों मुसलमानों का खून कर चुके हैं। अमेरिका ने उनको वीजा देने से इनकार कर दिया। आज उनके अमेरिकन कोर्ट में सम्मन है। अब आप क्या बात कर रहे हैं? अब हमारे साथ बातें करते हैं दहशतगर्दी की। यस, आई हैव टू से। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आपने मुसलमानों की बात की, मुझे आर के मल्होत्रा साहब, मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है आर के मल्होत्रा साहब से। आप मुसलमानों की वहां पर बात कर रहे हैं, कश्मीर में मैस ग्रेव्स डिस्कवर होती हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स वहां पर होती हैं, आपके फौजी वहां पर खवातीन का रेप करते हैं, टॉय बम्स आपकी आर्मी वहां पर यूज कर रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जब वो थकेंगे उसके बाद ही एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद थोड़ी सोल्यूशन के हवाले से मैं चाहता हूं जरा बात कीजिए। प्रोग्राम में हमारी डिस्कशन जारी रहेगी इंडिया के साथ। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ये दुनिया टीवी पाकिस्तान और न्यूज 24 भारत की मुश्तरका पेशकश है। ब्रेक के बाद डिस्कशन को जारी रखते हैं। आप जानते हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर लगातार गोलाबारी चल रही है, दोनों तरफ नुकसान भी हो रहा है। ऐसे में सोल्यूशन क्या हो सकता है इस पूरी डिबेट के बाद? अब यह पता लगाने की थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं। रहमान, हमारे यहां तो बिल्कुल क्लियर है, पब्लिक ओपिनियन गवर्नमेंट के साथ है। गवर्नमेंट कह रही है इस बार पाकिस्तान को एक स्ट्रांग लेसन देना है, उनकी मनमानी अब नहीं चलेगी। होम मिनिस्टर कहते हैं जमाना बदल गया, पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर आज कह रहे हैं अगर एडवेंचरिज्म करेंगे तो उसके बाद महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इंडिया का रिजॉल्व क्लियर है गवर्नमेंट का, और पब्लिक ओपिनियन भी उसके साथ है। फायरिंग बंद करिए, उसके बाद बातचीत होगी। सोल्यूशन यानी आपके पाले में है, आपके हाथ में, आपके पाले में इस समय गेंद है। राइट, चले मैं ये क्वेश्चन थ्रो करूंगा शाहिद लतीफ साहब को। शाहिद लतीफ साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? जी, थैंक यू वेरी मच। जैसे इन्होंने बात की कि पूरी अवाम जो है वो इस वक्त हुकूमत के साथ है, ये भी पैगाम सुन लीजिए। पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कश्मीर का फैसला जब होगा तो हिंदुस्तान से ताल्लुकात ठीक होंगे, और कोई इसके अलावा दूसरी बात नहीं हो सकती जब तक ये मसला हल नहीं होता। मतलब आप ये मान रहे हैं साहब, आप ये मान रहे हैं कि आप फायरिंग कश्मीर को हाईलाइट करने के लिए करवा रहे हैं, ये मान रहे हैं? अब सर, अच्छा, फायरिंग देखिए, आप बोल पड़े। आपकी बात गौर से सुनी, आपके लोगों की बात सुनी। आपका मसला क्या है? आप खुद को जमहूरी कहते हैं, आप टीवी के डिबेट में ये नॉर्म्स जो हैं इनको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। मेरी बात सुन लीजिए, उसके ऊपर कमेंट दे दीजिए। जैसे आपने अवाम की बात की, मैंने भी कह दिया अवाम ये चाहते हैं, और अवाम हमेशा से यही चाहते हैं। अगर आप अवाम को ताकत का सरचश्मा समझते हैं तो पाकिस्तानी अवाम की बिल्कुल यही डिमांड है, और इसके अलावा दूसरी डिमांड नहीं है। आपने कश्मीर के साथ पानी का मसला पैदा कर दिया, आपने बलोचिस्तान का मसला पैदा कर दिया। इंटरनेशनल मुबस्सरीन और इंटरनेशनल एक कम्युनिटी की बेस के ऊपर एक कमीशन बना लीजिए, कश्मीर के हालात उनसे दरियाफ्त कर लीजिए, ताकि आपकी रिपोर्ट या ना हमारी रिपोर्ट ये खत्म हो जाए। ये जड़ जो है इसको यहीं से पकड़ना होगा, और आप ये इल्जामात लगा के ये नहीं कह सकते कि इंडिया सबक सिखाएगा। वो सबक हम सारे जानते हैं। उस सबक से दुगना, उस सबक से दुगना सबक हमारे पास भी है। ब्लैकमेलिंग तो बिल्कुल नहीं चलेगी हिंदुस्तान के साथ। जो सवाल है मानक, आपने इस
चलेगी। सारे के सारे मुद्दे आप उठाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, और आप कह रहे हैं कि फायरिंग होती रहेगी। ये नहीं चलेगा। इंडियन गवर्नमेंट ने साफ बोला है, फायरिंग बंद होगी तब बातचीत होगी, उसके बिना बातचीत नहीं होगी, कोई बात नहीं। स्टोरी ऑफ द पास्ट। आप बात को देखिए, सुने। आप एंकर हैं इंडियन मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन, पर आचा साहब अभी जवाब देना चाह रहे एक हैं। बात ये समझनी चाहिए कि ये 1 अरब 30 करोड़ इंसान बसते हैं दोनों ममालिक में। भारत के अंदर 83 करोड़ अफराद वो हैं जो निसफ डॉलर से भी कम कमाते हैं, लेकिन आप अपने बजट के अंदर इजाफा कर रहे हैं। 49 लाख आपकी मिलिट्री है, और ये बात आप वादे कर लें कि पाकिस्तान को आप ताकत के जरिए से न दबा सकते हैं न फतह कर सकते हैं। एक ही हल है, और वो ये है कि मकसद मुज़ाकरात हो, कश्मीर को डिस्प्यूटेड माना जाए, कश्मीर में राय शुमारी करवाई जाए। अगर आपके साथ कश्मीरी है तो बिल्कुल ठीक है, राइट। आपको ये राइट चलें, पहुंचता लास्ट है, रिस्पॉन्स और और या दरियाई मकबूल पानियों जान का मसला हल करें। राइट, लास्ट रिस्पॉन्स और या मकबूल जान से फिर मेरा सवाल है। देखिए, दुनिया की कहीं भी जहां फ्लैश पॉइंट होता है इस तरह का वॉर का, तारीख इस बात को बताती है कि ये बायलैटरल लेवल पे बहुत कम हल हुआ है। हमें सोच लेना चाहिए कि कहां पर हम किस बंदे को साथ बिठाते हैं, क्योंकि जो जिस तरह का रिटोरिक चल रहा है, जिस तरह का पॉलिटिकल पार्टीज वहां है, जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज जहां पर हैं, जिस तरह की सूरत हाल है, हम अगर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आज खून देने के बगैर इसको तय कर लेंगे किसी जगह किसी मीडिएटर को लेके, तो तब तो ठीक है, वरना खून देने के बाद को मीडिएटर आके इसको करेगा, ये बड़ा मसला है। राइट, अच्छा, अब जो प्रोग्राम था वो था एलओसी के हवाले से, और वहां पर जो वायलेशंस हो रही हैं, हमें बार बार कहा जाता रहा प्रोग्राम में कि फैक्ट्स पर बात करें। गुज़िश्ता 5 साल में जो है 133 बार एलओसी की खिलाफ वर्जी हुई। रवां साल, ये जो अभी करंट ईयर है, 32 दफा जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी हुई। मेरा सवाल आपके दोनों पैनलिस्ट से है कि पाकिस्तान जो है वो बातचीत के लिए हाथ बढ़ाता है, नवाज शरीफ इंडिया जाते हैं, हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करते हैं, मगर आपकी जानिब से क्या जवाब आता है? लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी। उसके बाद खारजा सेक्रेटरीज की सतह पर, फॉरेन सेक्रेटरीज की सतह पर जो मुज़ाकरात थे वो भी जो है वो आप लोग कैंसिल कर देते हैं। तासुर यह जा रहा है कि पाकिस्तान तो सीरियस है, क्या बाकी भारत सीरियस है? आप लोग चाहते हैं कि डायलॉग हो? देखिए, फैक्ट की बात करते हैं। पाकिस्तान ये समझता है कि कश्मीर एक लो हैंगिंग फ्रूट है, इसको जब मर्जी हम ले लें। ऐसा नहीं है और ना हो सकता। दूसरी चीज, एक पैटर्न देखिए ओवर द ईयर्स होता क्या है। ये एक ऐसा वक्त है जब आप टेररिस्ट को हिंदुस्तान में घुसाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ही एक फेंस लगानी पड़ी, नहीं तो फेंस की क्या जरूरत है? किसी और बॉर्डर के अंदर कहीं इस किस्म की फेंस नहीं होती, हमें लगानी पड़ी बिकॉज आप आमादा हैं इस चीज के लिए कि हम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, हम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इस वजह से एक फेंस क्रिएट करी। और आपके यहां पाकिस्तान खड़ा ही इस एक सिक्योरिटी डेफिसिट कि हम ना ऐसी जगह है हिंदुस्तान हमें खा लेगा, इसकी वजह से उधर की फौज की ताकत बनी हुई। तो जब भी एक डेमोक्रेटिक पार्टी इलेक्ट होती है, इस किस्म की कोई चीज होनी शुरू हो जाती आपके यहां। नहीं तो जब तक मिलिट्री गवर्नमेंट थी वो बात भी करने को तैयार थे, वो मसलों का हल भी ढूंढने को तैयार थे, हिंदुस्तान में आने के लिए तैयार थे, और कोई इंटरेस्ट नहीं था। आज 2014 है। आर के मल्होत्रा साहब, फैक्ट्स पर आइए, थोड़ा पाकिस्तान के बारे में पढ़ लिया करें। अब कौन सी मिलिट्री गवर्नमेंट तक तो मुशर्रफ 2002 के बाद मुशर्रफ की गवर्नमेंट को आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बता रहे हैं? बेसिक क्वेश्चन। रहमान जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बता रहे हैं? देखिए, मैं बहस आपसे तब करूंगा। मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बता रहे हैं? जब आप गलत फैक्ट देंगे फिर मैं चुप नहीं बैठूंगा। कॉन्सेप्ट पे गवर्नमेंट हो रही है सर, जब आप गलत कौन सा गलत फैक्ट है? कौन सा गलत फैक्ट? मैं कह रहा हूं जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बता रहे हैं आप? पिछले साल दो आपको आपने सेलिब्रेट किया कि पहली बार 60 साल में आपकी एक गवर्नमेंट ने दूसरी गवर्नमेंट को चेंज किया। चलिए चलिए चलिए, खैर देखिए, एलिगेशन चलते रहेंगे। रहमान, मुझे लगता है टाइम भी खत्म हो रहा है। एलिगेशन मुझे लगता है रुकने वाले नहीं है। जो है वो आप उखाड़े हैं। चले, हमें प्रोग्राम खत्म करने। मैं शुक्रिया अदा कर दूं, आर के मल्होत्रा साहब हमारे साथ मौजूद रहे, अनिल कौल साहब और मानक, आपका भी बहुत शुक्रिया। न्यूज 24 का शुक्रिया कि इस जो मुश्तरका पेशकश थी इस पे उन्होंने हमारा साथ दिया। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये दोनों देश एटमी कुव्वतें हैं। ये बात लोगों को भी समझने की जरूरत है, हुकूमतों को भी समझने की जरूरत है, सियासतदानों को भी समझने की जरूरत है। बातचीत मामलात का हल निकाल सकती है, फायरिंग नहीं। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत मामलात का हल निकाल सकती है, कोई और चीज नहीं।
दोनों मुल्कों को इस बारे में सोचना होगा। और ये जो मासूम शहरी शहीद हो रहे हैं, ये फौज को जवाब नहीं दिया जा रहा, ये गुस्सा निकाला जा रहा है उन मासूम शहरियों पर जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पाकिस्तानी जाने बसते हैं। लाहौर से मेजबान रहमान अजहर को इजाजत दीजिए। रहमान, जो आप कहना चाह रहे थे, ऐसा लगता है कि आपने मेरे सारे के सारे शब्द छीन लिए। मैं बिल्कुल यही बोलने वाला था अपनी क्लोजिंग में कि दोनों गवर्नमेंट्स को यह समझना पड़ेगा कि बातचीत से ही सब कुछ हो सकता है, फायरिंग से नहीं हो सकता है। जबरदस्ती कोई आजकल किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। बिल्कुल यही बोलने वाला था मैं। बिल्कुल। आपने मेरे सारे शब्द छीन लिए। आपके मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया रहमान, एयर मार्शल लतीफ, औरिया मकबूल जान और फरीद पराशा। थैंक यू सो मच।